तो ये जो रिकोड सिस्टम है सर, ये किस तरीके से अंदर चेंजेस लाता है या इंप्रूवमेंट्स लाता है? कैरियर ग्रोथ लैडर नहीं है, कोडेड है। जैसे सॉफ्टवेयर किसी कोड पर चलता है, वैसे ही आपका कैरियर भी आपके इंटरनल प्रोग्रामिंग पर चलता है। बिलीव्स, बिहेवियर्स, पैटर्न्स जो सबकॉन्शियस में सालों से स्टोर होते हैं, उन पर बेस्ड है। इनविजिबल पैटर्न्स हैं, ये एग्जैक्टली क्या है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। हम एक पर्टिकुलर एनर्जी पे काम करते हैं। हमारी एक एनर्जी होती है और जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है। तो जैसे ही हमारे जो इनविजिबल पैटर्न्स हैं, हम जब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में जाते हैं, बोर्ड रूम में जाते हैं, एक कन्वर्सेशन की पोजीशन में हम जाते हैं, तो हमारी तैयारी तो बहुत ज्यादा है, नॉलेज भी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस समय हमें प्रेजेंट करना है उस समय हम हेजिटेशन के मोड में आ जाएंगे। जरूरत है डूइंग इज ओनली 30%। आपको रिजल्ट चाहिए तो जस्ट अंडरस्टैंड मी, डूइंग इज 70%। और जब तक आप डूइंग नहीं करेंगे तब तक उस डूइंग का कोई। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है साहिल साहूर एंड टुडे इट्स एन ऑनर कि मैं जिनके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं ना, और जितनी भी बातचीत, जितना भी पॉडकास्ट आप सुनने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी में एक करियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ये एक सिंपल सा पॉडकास्ट नहीं है कि आपने कुछ बातें सुनी और आपको कुछ अच्छा लगा और आप आगे नहीं चल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आज जो होने वाला है वो ये कि जब आप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और अंत तक सुनते जाएंगे तो अंत आते आते आपकी जिंदगी में, आपके प्रोफेशनल करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं, जिन्हें आपसे मिला रहा हूं ना, वो कोई ऑर्डिनरी रेगुलर पर्सन नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्होंने कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में जिया है और वो सारे एक्सपीरियंसेस वो आपके सामने रखने वाले हैं। So as I very confidently said that this is not just another podcast, and this is a full-fledged professional training designed to help you achieve real measurable outcomes in your career. And you know what? Here we will be going beyond conversations and we are going to dive into the strategies, structures, systems. Ladies and gentlemen, allow me to read it. Something very powerful for you. This is not just another podcast. This is a full-fledged professional training designed to help you achieve real measurable outcomes in your career. Here we go beyond conversations and dive into the strategies, systems and mindsets that create transformational results. Today's guest is someone whose work has transformed the careers of IT professionals across India, not North India, South India, across India. A mentor whose methods are backed by not only science, not only psychology, but the real results as well. And yes, ladies and gentlemen, I'm talking about Dr. Bipin Pundhir. So here I'm talking about Dr. Bipin Pundhir, who is India's leading IT career growth and mindset coach, creator of Mind This Word, creator of Recode System, and one of the most impactful behavioral transformation specialists for IT professionals. And Dr. Bipin brings a rare, powerful combination of expertise. Now keep counting. Behavioral psychology, NLP and subconscious pattern rewiring, leadership communication systems, identity re-engineering, performance and energy psychology, mind-blowing. Everything is mind-blowing. जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ ना, उतनी मेरी एनर्जी हाई होती जा रही है. He spent researching a very big question, which is close to your heart as well, that why do talented IT professionals get stuck at 15 to 25 LPA? And while others with the same skills break from 40 to 60 LPA. सोचने वाली बात है ना कि कुछ लोग वहीं अटके हुए हैं और उन्हीं के साथ के लोग कहां से कहां पहुंच गए। और ये बहुत जबरदस्त रिसर्च वर्क जो है इस पॉडकास्ट में आपके सामने आने वाला है। एंड अलाउ मी टू रीड हिज एकेडमिक वर्क एंड फील्ड रिसर्च विद 1500 plus professionals uncovered one thing, that careers don't grow on skills alone. Very important. That careers don't grow on skills alone, they grow on identity, behavior, visibility, and internal coding. Mind this, internal coding. Through his Recode system, Dr. Bipin has helped IT professionals achieve 2 times to 6 times salary jumps, promotion within months, leadership fast tracks, and more is on the way. And massive boost in confidence, visibility, and executive presence. His mission is bold and crystal clear: to help hardworking professionals break their invisible patterns,
unlock leadership potential, and step into the growth they truly deserve. His vision is to build a new generation of Indian tech leaders who rise not just on technical strength, but on strategic thinking, high performance identity, communication intelligence, and unshakable confidence. And at the core of his work lie three values. I really love these three values. आप बड़े ध्यान से सुना. Transformation over information. Just go deeper. Identity before strategy, and growth from the inside out. Yes, I think डॉक्टर साहब ये सब कुछ जो है ना फाउंडेशन होने वाली है आज की. From contract workers becoming managers, and from silent performance becoming visible leaders, from stagnation to 40-60 LPA breakthroughs, his work is changing the trajectory of hundreds of IT professionals and their careers. Ladies and gentlemen, help me welcome the most awaited career coach, professional coach for the IT professionals, Dr. Bipin Pundhir. Yes, sir. कैसे हैं आप? So, डॉक्टर साहब, एक सीधा सा सवाल कि 2025 की जो नोबल डिस्कवरी, एनर्जी शिफ्ट, बिलीफ सिस्टम और रिकोड सिस्टम है, इनके सबके पीछे की जो असली बात है, असली वजह है, जो हर लिसनर को सोचनी समझनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सिंपल है. 2025 का नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अर्जुन मेहता की क्वांटम कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी फील्ड डायनेमिक रिसर्च ये साबित करती है कि एनर्जी शेप्स रियलिटी, और यही नियम हम इंसानों की लाइफ पे भी लागू होता है. और हमारे बिलीव्स, इमोशनल एनर्जी और मेंटल लूप्स क्वाइटली हमारी डेस्टिनी को स्क्रिप्ट कर देते हैं. ओके. तो आप जब कह रहे हैं कि क्वाइटली डेस्टिनी को हमारी शिफ्ट कर देते हैं या बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, राइट, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? देखो, और इसी प्रिंसिपल को मैंने अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड सिस्टम को मैं डिकोड किया है, और इसी प्रिंसिपल को मैंने अपने सिग्नेचर प्रोग्राम रिकॉर्ड में डिकोड किया है. इसमें हम अपने आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़ते हैं, फियर और सेल्फ डाउट की एनर्जी को हम डिसॉल्व करते हैं, और आप एक क्वांटम पार्टिकल की तरह से अपनी आइडेंटिटी इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है. ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो डॉक्टर बिपिन, मेरा पहला बड़ा ब्रूटल सवाल आपसे ये है कि जो 15 से 20-25 LPA में जो फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए 40-45 में पहुंचने की इच्छा तो सभी की है ना, हर कोई वहां पहुंचना चाहता है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखो, मैं एक बात मेरे जितने व्यूअर्स हैं और आपको बताना चाहता हूं, क्या 15 से 25 लाख के जो आज ब्रैकेट में स्टैग्नेशन है, क्या जो IT प्रोफेशनल्स 40 से 60 लाख के सैलरी ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, क्या वो अपने आप हो जाएगा? क्या वो सिर्फ हार्ड वर्क के जरिए और कुछ सर्टिफिकेशन के जरिए हो जाएगा? नहीं होगा. वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वो अपने बिलीव, अपनी इनकम सीलिंग और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेवल पोजीशन की एनर्जी के साथ में अलाइंड नहीं करेंगे. ओके, सो अलाइनमेंट से थोड़ा सा क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली? देखो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ना हैज अ एनर्जी. ओके, है ना? वेदर इट इज वी आर सीइंग इट एज ए लिविंग or we are seeing it dead. Okay. And what we say dead is also having some movement. Okay. That science has already proved. True. तो जब हम हमारी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ में अलाइंड कर देते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है, या वो चीज हमें मिल जाती है. करेक्ट. ये बड़ा सिंपल सा है. जो हम पोजीशन पर जाना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी की पोजीशन है, ठीक है, जैसे आज में अगर कोई एक मैनेजर है आज, और वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर जाना चाहता है, या वो सीनियर मैनेजर या DGM की पोजीशन पर जाना चाहता है, तो मैनेजर की पोजीशन की एक एनर्जी है और सीनियर मैनेजर DGM की पोजीशन की एक एनर्जी है. क्या बात अब है? जैसे ही हम जो मैनेजर की एनर्जी को हम अपग्रेड करके DGM या GM की एनर्जी के साथ में हम अलाइन करते हैं, वो पोजीशन हमारी तरफ आ जाती है या हम उस पोजीशन की तरफ चले जाते हैं. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. तो इसमें एक गैप जो रहता है, तो जो आपकी हमारी जो कन्वर्सेशन अभी हम बाहर कर रहे थे, उसमें समझ में एक चीज आई है मुझे, जो मेरा सवाल भी बनता है कि as you said कि salary doesn't get stuck because of the skills you don't have. Only because of skills. Only because of your skills. But invisible patterns. So ये जो invisible patterns हैं, ये exactly क्या है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज. हम एक पर्टिकुलर एनर्जी पे काम करते हैं. हमारी एक एनर्जी होती है और जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है.
तो जैसे ही हमारे जो इनविजिबल पैटर्न्स हैं, हम जब इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाते हैं, बोर्ड रूम में जाते हैं, एक कन्वर्सेशन की पोजीशन में हम जाते हैं, तो हमारी तैयारी तो बहुत ज्यादा है, नॉलेज भी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस समय हमें प्रेजेंट करना है उस समय हम हेजिटेशन के मोड में आ जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग से बोलना है भाई, शो ऑफ नहीं करना है, लाइमलाइट में नहीं आना है, थोड़े पीछे होके चलना है। तो ये सब जो अचानक से जो हमारे बचपन से चीजें कहीं ना कहीं हम बातचीत बार बार सुनते रहे और हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गई है, वो अपना रोल प्ले कर देती है। अमेजिंग। और रिकॉर्ड सिस्टम में हम इन्हीं जो इंडिविजुअल पैटर्न्स है उसे हम वाइप ऑफ करते हैं, उसे हम हटा देते हैं, जिससे कि आप अपने कम्युनिकेशन में, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में, आप अपने प्रेजेंटेशन में आप लीडरशिप का जो रोल है वो प्ले कर पाए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हम जो हमारा इंटरव्यू है, जो हम नौकरी कर रहे होते हैं ना, तो अप्रैल से 3 महीने पहले या अप्रैल के टाइम पे इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू हमारा पूरी साल चलता रहता है कि हाउ आई एम प्रेजेंटिंग इन द मीटिंग्स। मतलब ठीक, कंपनी मुझे एक मैनेजर की तनख्वाह दे रही है, मैनेजर का मैं रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन अगले प्रमोशन तो मुझे तब मिलेगा ना जब मैं सीनियर मैनेजर का रोल प्ले करूंगा। एग्जैक्टली। तो उसके लिए तो वो आइडेंटिटी इवैल्यूएशन होता है, स्किल इवैल्यूएशन नहीं होता प्रमोशन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात है। प्रमोशन के लिए आपकी आइडेंटिटी इवैल्यूएशन होता है, स्किल इवैल्यूएशन नहीं होता, क्योंकि स्किल इवैल्यूएशन में तो आप ऑलरेडी पेमेंट आपको मिल ही रहा है। ठीक बात है, जहां पे आप है उतने की तो पेमेंट आपको हो ही रही है। हाँ, तो अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको आइडेंटिटी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। वो हम अपने डिकोड सिस्टम में करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो आपका जो रिकोड सिस्टम है ना, इसके बारे में भी गहराई से समझेंगे। तो एक चीज और है कि क्या ये जो इनविजिबल पैटर्न्स हैं, इनका सच में रियल करियर्स में एक इफेक्ट आता है? तो इसका कोई आपके पास प्रूफ है या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? हाँ, देखो, ये रिकॉर्ड सिस्टम है ना, ये आपकी स्किल्स बढ़ा के सफलता मिलेगी, वो ऐसा इस पर विश्वास नहीं करते, हम इस पर काम नहीं करते। आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, हम उस पर भी काम नहीं करते। आपके बहुत सारे अच्छे पर्सनल रिलेशन हो जाएंगे आपके सीनियर्स के साथ में, तभी आपको मिलेगा काम, हम उस पर बात भी नहीं करते। हम सिर्फ उस पर बात करते हैं, हम आप पर वो आपके अंदर एबिलिटी, वो कम्युनिकेशन पावर, वो मेंटल बिलीव्स हम आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, या उसको मैं कहता हूं एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड, वो मैं आपके अंदर डालता हूं, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली सेम स्किल्स के साथ में, सेम वर्किंग आवर्स के साथ में, एक कोजी वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए अपने ड्रीम्स, गोल्स एंड डिजायर्स को अचीव कर पाए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो आपके पास एक रियल केस स्टडी है मिस्टर केयूर वर्मा की। जी हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को जरूर बताएं। देखो, केयूर वर्मा इज अ वंडरफुल गाय। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही मेहनती बंदा था। और ये बात उस समय की है जब मैं अपना कैरियर में इन सब चीज़ों को, रिकॉर्ड सिस्टम जिसका पहला नाम होता था मिडास्टर सिस्टम, उसको मैं ट्राई कर रहा था। है ना। तो क्यूर वाज नॉट बाय द फर्स्ट कोस्ट, बस जो बिगनर्स के मेरे 12, 15, 20 केसेस थे उसमें से क्यूर वर्मा थे। वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर रोल में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे जी। काम वही करते थे जो कंपनी रोल के आदमी काम करते थे, स्टाफ काम करता था, लेकिन इनकी सैलरी 1,44,000 रुपए जो कॉन्ट्रैक्टर रोल के आदमी को मिलती है, और उनकी वही सैलरी 15 लाख 16 लाख जो है। बहुत बढ़िया। अब ये हो क्यों नहीं रहा था? क्योंकि क्यूर वर्मा एक गांव से निकल के आते थे। अब उसमें था यार मेरा होगा नहीं। अब वहां जनरली कंपनी में ऐसा होता है कि देखो ये कंपनी इस एरिया की है, सीनियर्स इस एरिया के हैं, तो इसी एरिया वालों को प्रमोशन मिलेगा। ठीक बात है। हाँ, थोड़ा चलता है। जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं खुद कॉर्पोरेट में 35 इयर्स तक मैंने सर्विस की है, एंड दैट टू द लेवल ऑफ इवन सीनियर जनरल मैनेजर। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा ना किया, ना मैंने किसी को होते देखा। लेकिन ये सब हमारे अपने बिलीव है। बहुत बढ़िया। जिनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रूफ नहीं है, लेकिन हम मानना स्टार्ट कर देते हैं उसको। मतलब हम जो शॉर्ट कमिंग्स है हमारी, उनको इस तरह की जस्टिफिकेशन देके हम कवर अप करते हैं। एक्सीलेंट,
एक्चुअली क्योंकि जो मैनेजर भी आपके ऊपर बैठा है या सीनियर मैनेजर है, जीएम है, उसको भी अल्टीमेट परफॉर्मेंस देनी है नेचुरली। और अगर वो नॉन परफॉर्मर्स को प्रमोट करके ऊपर ले आएगा तो उसकी अपनी नौकरियां क्या होगा और कितने दिन चलेंगी? सिंपल। तो पूर्व वर्मा को भी दिमाग में ऐसा थॉट था। अच्छा, इस थॉट के आसपास उसके दिमाग में एक और भी था कि मैं जहां का रहने वाला हूं इस जगह को छोड़ के मैं बाहर नौकरी करने नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से मेंटल बैरियर हो गया है। मतलब डिफरेंट तरह का, उसको कोई क्लैरिटी नहीं थी करना क्या है। ओके। हमने उसके साथ में बैठे, हमने हमारे पास एक, सबसे पहले हमारे पास एक टूल है, उस टूल में लगभग 22-25 क्वेश्चंस है। ओके। उसके साथ में बैठ के हमने उनके साथ मीटिंग की और हमने निकाला, समझा इस बात को कि वास्तवली वो चाहते क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बहुत कुछ है, सही बात लेकिन चाहते कुछ और है। बहुत बढ़िया, ऐसे होता है। हाँ, है ना। तो हमने वो डिकोड किया, उस सब की लिस्टिंग की, फिर उस पर उनके साथ काम किया। और अब स्थिति ये है कि जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सिर्फ सैलरी जंप नहीं हुई उनकी, वो सिर्फ कंपनी रोल में नहीं आए, आज वो बिरला में मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उनका जो 1,44,000 का सीटीसी हुआ करता था, आज वो सीटीसी 15 लाख से ज्यादा है। फैंटास्टिक। दिस इज क्वांटम जंप। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ, ये क्वांटम जंप का भी मेरा सवाल अभी आगे आएगा। मैं चाहूंगा कि मैं भी समझूं और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो इस बात को जरूर समझिएगा, क्योंकि जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इमर्ज्ड। सो वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं आने वाले कुछ मिनटों के अंदर। बट उससे पहले डॉक्टर साहब, हम शांतनु कुमार की बात करते हैं कि शांतनु कुमार की जिंदगी को आपने कैसे बदल दिया। देखो, जो शांतनु है वो मेरे साथ बहुत लंबे समय तक काम किए हैं। शांतनु जब मेरे साथ काम करते थे तो उनको लगभग 4 लाख का उनका सीटीसी था जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। और आज की डेट में शांतनु लगभग 24 लाख रुपए की सैलरी। और आज मैं आपको बता दूं, वो अदानी कोल में सर्विस करते हैं, बिलासपुर में उनकी पोस्टिंग है। ठीक है, ये हुआ कैसे? 4 लाख से 24 लाख कैसे पहुंचे? सिंपल, मैं तो इसी लेवल तक जा पाऊंगा, इतनी पढ़ाई वाले इस लेवल तक ही जा पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए कोई हैंड होल्डिंग किसी की चाहिए। इस तरह के जो बिना किसी प्रूफ के पैटर्न पड़े होते हैं, उनको हमने डिसॉल्व किया। जो लिमिटिंग बिलीफ था वो हमने तोड़े, और हमने इस धारणा को भी तोड़ा कि प्रमोशन 3 साल में ही मिलता है, क्योंकि हम उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं। जबरदस्त, बहुत गहरी बात है। देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जी। आप याद कीजिए, आपने कोई एक पिक्चर देखी होगी साहब। आप उस पिक्चर को याद करने तो नहीं गए थे जब 20 साल पहले आप उस पिक्चर देखने गए थे? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी उस पिक्चर के सारे डायलॉग, सारे एक्टर आपको याद है? बिल्कुल है। और आपने आपकी एजुकेशन में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा एग्जाम देने से पहले, वो याद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है ऐसा? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बता दिया गया बचपन से हमें, पढ़ना और याद करना बहुत मुश्किल काम है। ओके। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, प्रमोशन पाने के लिए ये पता नहीं क्या करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उन लोगों को देखेंगे जो इस बात पे विश्वास करते हैं, जो मेरा बेसिक एफर्मेशन है, माई लाइफ इज इजी, माई लाइफ इज एफर्टलेस, माई लाइफ इज लॉट ऑफ फन, तो जिंदगी अलग तरीके की होगी। हमारी जिंदगी में अलग तरीके के लोग आएंगे, हैंड होल्डिंग आएगी हमारे पास में, लव आएगा हमारे पास में, केयर आएगी हमारे पास में। लेकिन हमने तो जिंदगी बहुत मुश्किल है, जीवन ही एक संघर्ष है, इस तरह की चीजों से अपने जिंदगी में कचरा और कबाड़ा भरा हुआ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। एब्सोल्युटली। और मैंने एक चीज अभी आपकी इस बात से भी देखी है कि जैसे आपने बोला ना कि मेरी जिंदगी में लव आएगा, है ना, जिंदगी में फन आएगा, तो और आपकी पर्सनालिटी भी इस बारे में बहुत बताती है। आपके बोलने में पहले लगता है कि फुल ऑफ एनर्जी आपकी आ गई है, आपकी मुस्कुराहट, आपकी एनर्जी बता देती है। तो एक सवाल एक मेरा और भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हैं, 60-65 लाख का उनका एलपीए भी है, और उनका क्या लिमिटेड बिलीफ होगा, या वो और क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से एक मिस्टर प्रदीप हैं जिनकी जिंदगी को आपने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो, ये जो 25 लाख तक की सीलिंग जो मैं लेके चल रहा हूँ ना, अब आप देखिए कि जो आम प्रोफेशनल है आईटी सेक्टर में, वो 15 लाख की सीलिंग तक, तो 15 लाख की लेवल तक तो अपने आप आ जाता है इजीली। लेकिन वहां के बाद कुछ लोग रुक जाते हैं।
कुछ लोग फिर 40-45 की सीटिंग पे अटकते हैं, ठीक है, और फिर कुछ जाके 60-65 पे अटकते हैं। एब्सोल्युटली। तो देखो, जो नुकसान पहुंचाता है वो लिमिटिंग बिलीव्स ही नुकसान नहीं पहुंचाते, फियर ऑफ फेल्योर ही नुकसान नहीं पहुंचाता, फियर ऑफ सक्सेस भी नुकसान पहुंचाता है। ओके, कि अगर मैं और ऊपर गया तो आज जो मेरे इनविजिबल पैटर्न्स है, जो मेरी कुछ कमियां है या नहीं है, उससे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो थॉट है कि वो एक्सप्रेस हो जाएंगी। ओके, और जो आदमी नौकरी चल रही है वो भी तो कोई खतरे में नहीं आ जाएंगी। तो इस तरह के जो मतलब बिना किसी प्रूफ के जो फियर पड़े हुए हैं वो आदमी को रोक देते हैं आगे तरक्की करने से। और प्रदीप साहब जो थे वो अपनी एक पोजीशन पे थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे। अब उनको ये लगा कि अगर मैं ऊपर गया तो चेयरमैन और जो ऊपर की पोजीशंस होती है उसमें ऐसा तो नहीं मेरी कुछ कमियां हो वो एक्सपोज हो जाए और उसकी वजह से ऐसा मुझे कुछ एडवर्स कंडीशन में आ जाए। जिंदगी तो अच्छी चल रही है, मतलब एक्टिव माइंड कह रहा है कि मुझे प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, और सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पड़े हुए हैं, नहीं यार ज्यादा ऊपर जाने से खतरा हो सकता है। जैसे कि एक कहावत है, सूर्य के बहुत नजदीक जाओगे तो जल जाओगे। किसी ने देखा है क्या? कोई गया है क्या? नहीं देखा, लेकिन एक बचपन से एक चीज बैठ गई दिमाग में। तो ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में हम हमारे सीनियर मोस्ट को वो सूरज मान लेते हैं और फिर ये कर लेते हैं कि भाई इसके बहुत नजदीक नहीं जाना, नहीं नुकसान होता है। ओह बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जैसे अभी हमने कयूर की बात की या शांतनु की बात की, अभी अब मिस्टर प्रदीप की बात की, तो इनमें कॉमन मैसेज क्या निकल कर आता है? देखो, ये जो फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ सक्सेस, ओके, लिमिटिंग बिलीव्स, ये तीन चीजें निकल के कॉमन आई जो कि एक इनविजिबल सीलिंग बनाती है सैलरी हाइक में। ओके, इनको हमने ब्रेक किया, डिसॉल्व किया, रीस्ट्रक्चर किया। वेरी नाइस। सो अभी आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आने वाले 4 से 5 मिनट, अंत तक पॉडकास्ट जरूर देखना, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी के जवाबों से बदलनी और खूबसूरत होनी शुरू हो गई होगी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जो रीकोड है उसके बारे में एक ऑर्डिनरी आदमी कैसे सीखे, समझे, और किस तरीके से आप मुझे या हमारे ऑडियंस को समझा पाएंगे कि हाँ भाई, रीकोड करने से मेरी जिंदगी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। देखो, ये कोई लक नहीं है, ये कोई चांस नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू फिक्स द रियल प्रॉब्लम। ओके, सो रियल प्रॉब्लम से आपका क्या मतलब है? एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि मेरी रियल प्रॉब्लम क्या है? वो क्या सोचेगा, क्या उसको विचार आएगा सो दैट उसको लगे कि हाँ, डॉक्टर बिपिन पुंधीर मेरी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं? देखो, हमारे पास सब कुछ करने के लिए टाइम है। ओके, हमारे पास अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए टाइम नहीं है। देखो, 3 चीजें हैं, एक आपका है सिम्टम्स, एक है प्रॉब्लम, और एक है कॉज। ओके, हम अपना पूरा समय प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स को देखने में और प्रॉब्लम्स को समझने में और डिस्कस करने में निकाल देते हैं। उसकी कॉज मेजॉरिटी ऐसी करती है, ठीक है, कॉज पर नहीं जाते। जब हम साइंटिफिकली तरीके से हम उसके कॉजेस पे काम करते हैं, कॉजेस के पे काम करने के बाद उसके रीजंस ढूंढ लेते हैं जी, और उन रीजंस पे काम करके उनको डिसॉल्व कर देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं विद पॉजिटिव थिंग्स, जिसको मैं कहता हूँ एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड। अच्छा, एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड, क्या बात है, क्या बात है। तो ये, और एक्सीलेंस एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहता ही चाहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो एक्सीलेंट हो, चाहता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग तो उस एक्सीलेंस को लेकर हैं और कुछ लोग नहीं है। ओके, जो नहीं है वो तो या अपने आप किसी तरीके से डालें, ठीक है, या फिर किसी की हेल्प ले लेगा। और अगर हेल्प का कोई दिमाग में आए तो डॉक्टर बिपिन पुंधीर जरूर दिमाग में आने चाहिए, है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी बात आती है ये रिकोड, एक्सीलेशन इंस्टॉलेशन कोड किसके लिए है जी? तो ये उनके लिए है जो आईटी प्रोफेशनल लगभग 25 लाख की सैलरी पर स्टक है और अपनी सैलरी पैकेज को, अपने सीटीसी को 50 से 60 लाख की तक ले जाना चाहते हैं, इससे ज्यादा भी। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा की लिमिट को टच कर चुके हैं और अभी भी वो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा रिकॉर्ड सिस्टम उनके लिए है जो रिकॉग्निशन, विजिबिलिटी और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड है।
ये गुड परफॉर्मर्स है, वैल्यूएबल परफॉर्मर बनने की चाहते हैं, ये उनके लिए है। और जो क्वांटम जंप करना चाहते हैं 25 लाख से 60 लाख या उससे ज्यादा पर। फैंटास्टिक। एंड दैट टू विदाउट एडिंग मोर स्किल्स, मोर सर्टिफिकेशंस, इजीली एंड स्मूथली। फैंटास्टिक। जस्ट वर्किंग ऑफ आवरसेल्फ, नॉट ऑन समवन एल्स। हाँ, बदलाव तो खुद से ही आएगा। अपने- सो ऑल द आईटी प्रोफेशनल्स, इफ यू आर बिटवीन 25 to 30 LPA और आपको लगता है कि आप यू आर गुड फॉर समथिंग बट यू आर नॉट बीइंग वैल्यूड फॉर समथिंग एंड यू वांट टू अपस्केल, यू आर लिसनिंग टू द राइट पर्सन, डॉक्टर बिपिन पुंदीर। और आगे चलते हैं और सवाल पूछते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो अगले सवाल पर जाने से पहले आपको भी एक क्यूरियोसिटी होगी कि डॉक्टर बिपिन पुंदीर हमारी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को बदला, खूबसूरत किया, ट्रांसफॉर्म किया, और किस तरीके से आईटी प्रोफेशनल्स को ऑल ओवर इंडिया वो उनकी ज़िंदगी में उनको अपस्केल कर रहे हैं और बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। सो लेट्स गो टू डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि आपने अपनी लाइफ में अपने आप को कैसे बदला या ट्रांसफॉर्म किया, क्या हुआ एग्जैक्टली, हमारी ऑडियंस ज़रूर सुनना चाहेगी। देखो, पहले क्या है, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था जी। मैंने पहले फर्टिलाइजर्स में सर्विस की, फिर मैं अपना करियर मैंने 500 रुपये महीने शुरू किया था, और मैंने जो अपना करियर एंड किया वो लगभग 50 लाख के CTC पे किया। और ये रिकॉर्ड सिस्टम है, इसकी डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस में लाइफ में करता रहा और जिंदगी में आगे बढ़ता गया। ओके। बहुत से लोग हैं जो मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरी जर्नी किस तरीके से इजी एंड स्मूथ रही, और बिना किसी हासिल के मैं कुछ प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज को, मेरी अपनी ओन डिस्कवरी की हुई टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके मैं अपनी जिंदगी में एक अनस्किल्ड लेबर से सीनियर जनरल मैनेजर, एक अच्छी बड़ी इंडिया की टॉप कंपनी में मैं पहुंच गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। लेकिन जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था ना, तो मेरा अक्सर मैं बहुत सारे IT कंपनीज में, TCS मेल है और बाकी और भी कई सारी कंपनियां, ऑरेंज है और बहुत सारी है, उनके एम्प्लॉयज मुझे अगले साल में मिलता है, और जिस कंपनी में मैं था वहाँ का मेरा IT डिपार्टमेंट। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि जो है यार, ये यहाँ तक तो चीज ठीक चली, अब यहाँ आके क्यों फंस गई। अब जब उसमें टैलेंट भी है, उसमें डेडिकेशन भी है, वो स्किल्स भी अपनी अपडेट कर रहे हैं, वो लेजी भी नहीं है, फिर ये तो क्या चक्कर हो रहा है, क्यों फंस रहा है। तो फिर मैंने उसमें रिसर्च करना शुरू किया। मैंने 10 लाख रुपए से लेके इवन 1 करोड़ तक कि जो CTC पे लोग काम कर रहे हैं, उनके मैंने बहुत सारे लोगों को IT प्रोफेशनल्स या IT प्रोफेशनल। अच्छा, IT प्रोफेशनल। हाँ। तो इसीलिए आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो IT प्रोफेशनल्स में भी होगी। हाँ, मेरी स्पेशलाइजेशन मैंने IT प्रोफेशनल्स में इसलिए की क्योंकि मुझे मालूम है कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो IT प्रोफेशनल्स को ग्रो करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आने वाला समय IT का है। ब्यूटीफुल। और अगर मेंटली, देखो हमारी 2 तरह की हेल्थ होती है जी, एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ। और अगर मेरे IT प्रोफेशनल्स की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिजिकल हेल्थ की अपनी वैल्यू है, मेंटल हेल्थ की अपनी वैल्यू है। बहुत बढ़िया। क्योंकि कैरियर में हम अपनी मेंटल हेल्थ से आगे बढ़ेंगे, फिजिकल हेल्थ से नहीं बढ़ेंगे। फिजिकल हेल्थ हमारी दूसरी जरूरत पूरी करेगी। सो जैसा भी आपने बताया कि आपने हर स्केल के, हर LPA के लेवल को लेके IT प्रोफेशनल्स को आपने एक तरह से, आपका ये रिसर्च वर्क रहा, तो उस रिसर्च से क्या निकल कर आया आपके हिसाब से? देखो, जो असली प्रॉब्लम थी ना, वो IT प्रोफेशनल्स के बाहर नहीं थी, वो अंदर थी जी, जिसमें कि जो जरूरत का समय है वहां पे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अचानक से। विजिबिलिटी का इशू आ जाएगा। फिर विजिबिलिटी के बाद वो क्या करेंगे कि लीडरशिप जो पार्टिसिपेशन है उसको, परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देंगे, जो मेंटल बिलीव्स पैटर्न्स जो पड़े हुए हैं दिमाग में। और उसके अलावा मैं तो मतलब ठीक है मैनेजर हूं, लेकिन मैं जो है एक अथॉरिटी जैसा नहीं हूं। ये जो चीजें दिमाग में पड़ी हुई है ना, वो बेसिकली निकल के आती थी। इसमें कई लोगों को फियर ऑफ फेल्योर हावी रहता था, और कई जो बहुत सीनियर लोग थे उन पर फियर ऑफ सक्सेस भी हावी रहता था। दोनों टाइप के लोग अटक जाते थे बेसिकली। तो अभी हमारी कॉन्वर्सेशन से जो एक बात निकल के आ रही है, मोर अबाउट इनविजिबल पैटर्न्स, कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस तो है, बट उनको खुद को दिखाई नहीं दे रहा
है ना? तो ये पैटर्न्स क्या चीज़ है, इसका कोई एक लिविंग एग्जांपल जो आईटी प्रोफेशनल्स बहुत आसानी से समझ सके, बिकॉज उनका समझने का एक डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट तरीका होता है। देखो, वर्ल्ड में और इंडिया में आईटी प्रोफेशनल्स को लेके जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उस तरह का काम नहीं हो रहा है। ओके, है ना? कोई कभी आपको मिला भी नहीं होगा, कोई देख भी नहीं रहा होगा शायद अभी तक तो नहीं। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है ना, और जिसको आप रिकोड कह रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक नई चीज है। मुझे भी 30 साल हो गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी जो कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही है और जो समझ मुझे भी आ रही है नई चीजें, वो मुझे लगता है कि अभी तक यूनिक है। तो आप कुछ नया लेकर आ रहे हो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, ये हिडन पैटर्न जो है ना, ये साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे करके आदमी कैरियर को खत्म कर देते हैं। ओके, इसको समझने के लिए मैंने एक तो समय भी बहुत लगाया जी, और डिफरेंट जो सैलरी स्लैब के लोग हैं, डिफरेंट एरिया के लोग हैं जी, उस लोगों से मैं मिला भी बहुत आईटी सेक्टर वालों से। और ये मैंने इसमें इसको समझने के लिए जो मैंने टूल्स, टेक्निक्स एंड जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किए वो थी बिहेवियरल साइकोलॉजी, NLP, सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन। इसके बाद में परफॉर्मेंस साइंस को भी मैंने यूज किया इसको समझने के लिए, और फिर एनर्जी साइकोलॉजी को भी मैंने समझा। ओह माय गॉड, इन चीजों को समझने के लिए सब सब्जेक्ट्स को मैंने इसमें यूज किया। और मैं यहाँ तक कि मैंने 10-15 लाख के CTC से लेके 1 करोड़ तक के CTC के साथ में मैंने इंटरव्यू किए। ओके, और फिर जो सिस्टम निकल के सामने आया वो था डिकोड। जो सिस्टम फिर सामने निकल के आया वो था रिकोड, साइंटिफिकली इंजीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि काम क्या करता है, इजीली बहुत आसानी से क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट में नहीं कहूंगा, एक आईटी प्रोफेशनल के अंदर एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड इस्टेब्लिश कर देता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, फैंटास्टिक। सो इन पैटर्न्स को आपने किस तरीके से उनको स्टडी किया, रिसर्च किया, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए? क्योंकि मेरे हिसाब से आपने 5-6 चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए प्लीज। देखो, एक सिस्टम जो आपके इनर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करता है, ये वो सिस्टम है जो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को रिवायर करता है। ओके, ये वो सिस्टम है जो आपके परफॉर्मेंस बिहेवियर को रिबिल्ड करता है। ओके, ये वो सिस्टम है जो आपकी विजिबिलिटी को एम्पलीफाई करता है। फैंटास्टिक। और ये वो सिस्टम है जो आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। क्योंकि जब आप माइंड को रिकॉर्ड करते हो तो आपने आप कैरियर को भी रिकॉर्ड करते हो। एक्सीलेंट। तो आप ये कह रहे हैं कि माइंड को रिकोड, RECODE रिकोड करने से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ब्यूटिफाई कर सकते हो, यस, अप स्केल कर सकते हो। यस, फैंटास्टिक। क्योंकि देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी उतनी और वैसी ही है जो कि मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। वो कागज पर लिखी हुई जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं है। वो कागज के पर्पस, देखिए, इसीलिए देखिए कि इतने सुंदर सुंदर रिज्यूम, आजकल तो रिज्यूम राइटिंग की पूरी एक सर्विस ही चल रही है। एब्सोल्युटली, एक्सपर्ट्स बैठे हुए है ना? क्या वो सुंदर रिज्यूम का वास्तव में यूज होता है कैंडिडेट को कॉल पे बुलाने के लिए? ओके, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरे लिए तो ये नई बात है। नहीं, आप खुद तो बढ़िए इंडस्ट्री से। देखो, आज हमें बड़ी अच्छी बात बता जी, जब भी कोई टॉपिक से हटके है, लेकिन टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बहुत कनेक्टिंग है। जैसे ही हमें प्रॉब्लम होती है अपने कैरियर में, तो सबसे पहले तो हम पंडित जी के पास चले जाते हैं जन्मपत्र दिखाने। मोस्टली जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उससे हम अगर बच पाते हैं या उससे फिर आगे बढ़ते हैं तो जेमस्टोन वाले के पास चले जाते हैं। ठीक है, फिर हम वास्तु वाले के पास चले जाते हैं। देखिए, हम काम कर रहे हैं, हम ग्रोथ चाहते हैं, करेक्ट, एक्टिव माइंड हमसे काम करवा रहा है। फिर हम तो आईटी सेक्टर में है, थोड़ी प्रोग्रेसिव है, तो हम क्या करते हैं, फैंसी रिज्यूम राइटिंग सर्विस ले लेती है जी। लिंक्डइन पर भी एक एजेंसी हायर कर लेती है जो लिंक्डइन पे हमारा प्रोफाइल बना दे, हमारी पोस्ट डालती रहे, नेटवर्किंग करती रहे। लेकिन मैं जब 35 साल करियर में रहा हूं, क्या बताइए, कभी किसी में सीनियर GM को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को किसी इस बेसिस पर सिलेक्ट करते हुए आपने देखा कि वो उससे जान पहचान उसकी बहुत अच्छी है और वो उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे और हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली भेजता है? मतलब ही बनता, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जब तक देखो, 2 चीजें करियर में साथ साथ चलती है, आपकी स्किल्स और आपका माइंडसेट। हमें अपनी दोनों एबिलिटी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना केवल माइंडसेट काम करेगा और ना केवल स्किल काम करेगी। आप देखिए, आपके बराबर की स्किल वाला बंदा आपसे आगे क्यों निकल गया?
भाई उसकी एजुकेशन उसकी स्किल्स भी वही है जो आपकी एजुकेशन आपकी स्किल्स है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है माइंडसेट का। तो अगर किसी को गॉड गिफ्ट है, किसी की परिस्थितियां परिवार की और उसकी एटमोस्फियर अलग अलग है, किसी को वो क्रिएट करनी है। क्या बात, ब्यूटीफुल। तो अगर भाई क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर लो, मुश्किल थोड़ी है। लेकिन जो रिज्यूम का काम है वही रिज्यूम करेगा। अब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अचानक से आपने सब तैयारी की है, फिर भी अंदर से खबर जाती है यार होगा नहीं। लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है भाई? आपको तो 1 महीने पहले से मालूम था ये मेरा इंटरव्यू है। आप वो काम कर भी रहे हो इतने सालों तक, इतने सारे सालों तक वो वही काम आप कर रहे हो। स्किल्स से आप फुलफिल्ड हो, पूरी स्किल्स आप जानते हो, इंडस्ट्री में हो, इंटरव्यू लेने वाला भी आपको पहचानता है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है कि नहीं होगा? प्रैक्टिकल है ना सर? बिल्कुल, बहुत गहरी बात है, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं कुछ तो अंदर चल रहा है। तो 24/7 जो है वो लिमिटिंग बिलीफ्स जो है वो हमारे काम करते रहते हैं। जो हमारे सेल्फ डाउट है वो काम करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, उसका दोष कभी अपने मैनेजर को देते हैं, कभी अपने कंपनी मैनेजमेंट को देते हैं, कभी इंडस्ट्री को देते हैं, और कभी देश और वर्ल्ड की इकोनॉमी को दे देते हैं। सही बात है, दोष बाहर है लेकिन वो गड़बड़ अंदर है। उसको छोड़ो और अपने ऊपर काम कर लो। दैट इज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड टेक द क्वांटम लीप फॉर योर ड्रीम्स, गोल्स एंड डिजायर्स। सो ये जो रिकोड सिस्टम है सर, ये किस तरीके से अंदर चेंजेस लाता है या इंप्रूवमेंट्स लाता है? कैरियर ग्रोथ लैडर नहीं है, कोडेड है। जैसे सॉफ्टवेयर किसी कोड पर चलता है, वैसे ही आपका कैरियर भी आपके इंटरनल प्रोग्रामिंग पर चलता है। बिलीव्स, बिहेवियर्स, पैटर्न्स जो सबकॉन्शियस में सालों से स्टोर होते हैं उन पर बेस्ड है। अगर आप बग फिक्स कर दें, पूरा सिस्टम इंस्टेंटली फिक्स हो जाता है, ठीक है, पूरा बदल जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने बग फिक्स की उसके बाद भी वो धीमे धीमे इंप्रूव करेगा झटके से। सो दिस इज व्हाट योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग So that's how recode system actually works. Okay. So जैसे इसमें थोड़ा सा है कि आइडेंटिटी, बिहेवियर, विजिबिलिटी। रिकॉर्ड सिस्टम आपके इंटरनल कोडिंग को 3 क्रिटिकल लेवल्स पर हैंडल करता है जी। पहला आपकी आइडेंटिटी, आप अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या समझते हैं। ओके। दूसरा आपका बिहेवियर, आप कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। नंबर 3 विजिबिलिटी, मार्केट या आपके कलीग्स या आपका मैनेजमेंट आपको परसीव कैसे करता है जी। तो ये 3 चीजें हैं, और जब ये तीनों अलाइनमेंट हो जाते हैं आपस में तो इंक्रीमेंट नहीं, क्वांटम जंप होता है। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो मैंने आपको स्टोरीज बताई और आगे मैं आपको बताऊंगा जो मेरे रियल लाइफ हीरोज हैं जिन्होंने इतना अच्छा अचीव किया है लाइफ में, आप देखेंगे सबकी लाइफ ऐसी क्वांटम लीपली है। वाह, मैं भी अपने क्वांटम लीप की इंतजार कर रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली। ये बात बड़ी जबरदस्त आपने बताई कि आइडेंटिटी, आपका बिहेवियर एंड देन आपकी विजिबिलिटी, ये जैसे अलाइन हो जाए तो आप इंक्रीमेंट नहीं है, फिर आप क्वांटम लीप की बात करो फिर बस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये जो है ना, ये सालों में नहीं होता। ओके। ये महीनों में होता है, ये हफ्तों में होता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसा कि आपने एक सिस्टम में बग आई हुई थी, आपने उसको फिक्स कर दी, सिस्टम स्पीड में दौड़ गया। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्सीलेंट। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसीलिए शायद आप सिर्फ आईटी वालों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, हम जैसे लोगों पे फोकस नहीं कर रहे। हाँ देखो, अभी क्या है कि आईटी वाले इसको लाइटर साइड जब से जो है ना ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, तब से जो है ये आईटी वालों का इवेल्युएशन जो है ना, और ऑफिस जाने की जो एक एनर्जी होती है ना, वो वहां मिसिंग हो गई है। करेक्ट। तो आज तो मेरा जो आईटी प्रोफेशनल है ना, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है। तो मुझे जरूरत है ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स की जो अपनी लाइफ को जो है ना एकदम स्काई रॉकेट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो ऑल दी आईटी प्रोफेशनल लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, बने रहिए, क्योंकि अभी हम रिकोड की डेप्थ में जाने वाले हैं। अभी जो आपने 3 शब्द सुने कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी विजिबिलिटी एंड आपका बिहेवियर को जो बैलेंस करना है ना, ये चुटकियों का काम है विद रिकोड सिस्टम। सो आगे सुनते हैं डॉक्टर पुनीत से, आगे जानते हैं कि किस तरीके से ऑल दी आईटी प्रोफेशनल्स अपनी जिंदगी को और स्केल अप कर सकते हैं। देखिए, अब रिकॉर्ड सिस्टम में इंटरनल कोडिंग को 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में अपन समझ लेते हैं जी। पहला स्टेप है व्हाट इज आइडेंटिटी री इंजीनियरिंग।
व्हाट इज आइडेंटिटी री इंजीनियरिंग। ओके, नंबर 1 पर इसको समझ लेते हैं, जो ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 में व्हाट इज वैल्यू एम्प्लीफिकेशन, इसको समझ लेते हैं। ओके, और नंबर 3 पे अपन समझ लेते हैं विजिबिलिटी इंजीनियरिंग क्या है। वाओ, ओके, ठीक है, व्हाई इज विजिबिलिटी सो इम्पोर्टेंट फॉर ए आईटी प्रोफेशनल। और नंबर 4 पे ये समझ लेते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ओके, एंड इंटरव्यू डोमिनेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। फैंटास्टिक, दिस इज वंडरफुल। सो डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है कि जो आइडेंटिटी री इंजीनियरिंग है उसको थोड़ा सा आईटी प्रोफेशनल्स को डीप लेवल पे समझा दीजिए। देखो, एक बार मैं आपको पहले भी इसी पॉडकास्ट के दरमियान बता चुका हूँ जी, कि हमारी परफॉर्मेंस उसके हिसाब से नहीं होती है जो हमारे बायोडेटा में, रिज्यूम में या पेपर पर लिखा है। ओके, हमारी परफॉर्मेंस हमेशा हम अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या समझते हैं उसके हिसाब से होती है। जी, ओके, इज इट सिंपल ना? तो देखो, एक सिंपल सी बात है कि अगर हम एक एनर्जी अपने आप को हम ये मानते हैं कि मैं 22% की एनर्जी कैरी करता हूँ, ओके, तो ग्रेजुअली मैं 22% बन जाऊंगा। और अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जो मैं एनर्जी कैरी कर रहा हूँ जो मेरे आज के जॉब के लिए बहुत परफेक्ट है, तो मैं अपने आज के जॉब पर ही रहूंगा, मुझे वो आगे इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और Okay. मेरा जो आइडेंटिटी री इंजीनियरिंग है, इसमें आप 2 चीज समझिए। मैंने इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और डीएनए रीइम्प्रिंटिंग, जो मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, ओके, उसको मैंने एक तो यूज किया है। और दूसरा इसमें सिंपल सी बात है, अब जो इंटरव्यू, चलो एक और अच्छी सी बात करते हैं जी, जब हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। नंबर 1, वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें उनको प्रमोशन मिल जाए और हाई लेवल का इंक्रीमेंट लग जाए, ठीक है, या उनको इंडस्ट्री में से कोई, मतलब उनको इंडस्ट्री से कोई दूसरी कंपनी सीनियर पोजीशन पे ले जाए। ये 2 ही तरीके हैं। बिल्कुल ठीक है, अब जो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की कि अपनी कंपनी में ही प्रमोशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि हम जो है जहां हैं वहीं बढ़े। ओके, क्योंकि जब हम कंपनी चेंज करते हैं तो हमें हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो बहुत वो बढ़िया। एक बहुत जबरदस्त पेन होता है। बहुत गहरी बात बोली आपने, यस, है ना? जितनी बार हम कंपनी चेंज करेंगे हमें अपने बॉस को, अपने मैनेजमेंट को हर बार अपने को प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ, तो उसकी जगह हम सेम कंपनी में ग्रो करें। ओके, अब सेम कंपनी में अप्रेजल के टाइम पर ही जो है हमारा इवेल्युएशन होता हो, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, हम पूरी साल जिस एनर्जी के साथ में, जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ में, हम जिस माइंडसेट के साथ में बोर्ड रूम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स में अपनी बात को वहां रखते हैं, वही डिसाइड हो जाता है कि हमारा इंक्रीमेंट इस साल हमारा इंक्रीमेंट इस साल किस लेवल का लगने वाला है और हमारा प्रमोशन होने वाला है या नहीं होने वाला। क्योंकि वहां पर स्किल टेस्ट नहीं हो रहा हमारा, वहां पे हमारा आइडेंटिटी टेस्ट हो रहा है, जो कि हमारे सीनियर्स लगातार करते रहते हैं। एक्सीलेंट, ये आपने बहुत गहरी बात बोली है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी एम्प्लॉय हो वो मिस कर जाता है। उसको लगता है कि मैं जो प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ इसके बेसिस पे मेरा काम हो रहा है। नहीं, उसके बेसिस पे तो, जो कि आपने बिल्कुल सही बात बोली है, उसके बेसिस पे तो तुमको सैलरी मिल रही है और तुम नौकरी पे आ रहे हो, दैट इज डन। बट आपकी आइडेंटिटी क्या बिल्ड हो रही है, उसकी री इंजीनियरिंग क्या है, उसके ऊपर यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और जज, और उसके बेसिस के ऊपर आप एलिवेट करोगे। दिस इज व्हाट यू सेड, राइट? हाँ, अब इसमें एक चीज और है, मार्केट में अभी बहुत सारे मतलब ब्रांड इंजीनियर्स आ गए हैं। ओके, वो ब्रांड इंजीनियर्स क्या होते हैं? वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप एक महंगा कोट पहन के जाओ, ओके, ऑफिस का एक ड्रेसिंग कोड कर लो, इस तरह के आप जूते पहनो, इस तरह की घड़ी पहनो। वो पूरा आपको वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को एज ए ब्रांड प्रोड्यूस करो। ओके, हाँ। लेकिन भाई मैं तो 35 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट में बिताए हैं, मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूं इसको मैनेजर के, हमारे मैनेजमेंट को इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं डिलीवर क्या कर रहा हूं, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट। एब्सोल्युटली राइट। मैं कैसा दिख रहा हूं वो जरूरी नहीं है, अच्छी बात है आप अच्छा दिखो, गुड, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि डिलीवर क्या कर रहे हैं। और डिलीवरी होती है कि हमारे अंदर से कितने जाने हम एंथुसियास्टिक हैं। और इसमें मेरा एक सिद्धांत है, जो कि एक प्रिंसिपल, एक कोट, जिसने मुझे और जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया उनको लाइफ में बहुत कुछ दिया। वो सिंपल मेरा ये कहना है, द बेस्ट वे टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन
is to work as if it's your own. ओन ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अगर सिंपल ये सिद्धांत मैंने अपने माइंड में बैठा लिया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे तरक्की करने से, मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एब्सोल्युटली। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर इस एनर्जी के साथ, इस फीलिंग के साथ मैं ऑफिस में अपने में आ रहा हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली प्रमोशंस मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात। और ये सारा गेम दिमाग का है, माइंडसेट सारा गेम दिमाग का है। हाँ। भाई उसी वर्क प्लेस को आप अपना मान लो, उसी वर्क प्लेस को बोलो जी मुझे तो यहाँ पे उतने ही दिन रहना जब तक मुझे अगला जॉब नहीं मिल रहा। सही बात है। हाँ। तो काम करने का मन भी नहीं करेगा फिर वहां पे। अच्छा, एक इंतजार करोगे आप। एक चीज हम बेसिक और बता दें आपको कि पता नहीं क्या हो गया है कि जब दिन निकल रहा है तो मैनेजर ये सोच के, ये वाइस प्रेसिडेंट या जीएम ये सोच के उठ रहा है कि मेरा स्टाफ मुझे परेशान करेगा। जैसे स्टाफ पैदा ही हुआ है उसे परेशान करने के लिए। ठीक है। और स्टाफ ये सोच रहा है कि आज मैनेजर मुझे और 4 बात बताएगा। सही बात है। हाँ। जबकि भाई वो मैनेजर ने आपको नौकरी पे इंटरव्यू लिया था, आपको सिलेक्ट किया था, तो आपको दुश्मन थोड़ा ही था। दुश्मन थोड़ा ही है। और जिस एम्प्लॉय ने किसी मैनेजर को ज्वाइन किया है तो उसका वो ग्रेटफुल क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली ग्रेटफुल होगा। एब्सोल्युटली। तो ये सब चीजें हैं कि देखो, फिर मैं वही कह रहा हूं, एवरीथिंग कम्स टू अलाइनमेंट। ठीक है। अब जब आप अपने सीनियर बॉस के साथ अलाइन कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं अलाइन उस पोजीशन के साथ में जो जिस पर कि आप जाना चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, बॉस तो ऐसा होता है, बॉस तो वैसा होता है। तो आप अपने बॉस को नहीं, उस पोजीशन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि बॉस आपसे अपनी कोई बात नहीं कह रहा है। वो जो उस पोजीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एनर्जी है, वो आपसे शेयर कर रहा है। बाय गुडनेस। सो मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, इसको रिवाइंड करके फिर से सुनना। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही गहरी बात है। अगर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बैठ जाएगी ना, ट्रस्ट में आपको $1 मिलियन इनसाइट आपको मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को भी तकरीबन 30 साल हो गए हैं कॉर्पोरेट में, बट ये मेरा भी आपने एक अच्छा सा माइंड शिफ्ट किया कि इट्स नॉट बिटवीन 2 पर्सन्स, है ना, इट्स बिटवीन 2 माइंडसेट्स जो कि आपकी चेयर डिमांड करती है, या उस चेयर की, जो आपने बहुत सही शब्द का प्रयोग किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चेयर की, एंड व्हाई शुड दे गो अगेंस्ट ईच अदर। फैंटास्टिक। सो आपके पास एक ऐसा ही, मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे थे तो एक और एग्जांपल था आपकी HR मैनेजर रितु के बारे में। हाँ, रितु के साथ क्या था, वो शी इज वंडरफुल वर्कर, मतलब एम्प्लॉय। उसके साथ था कि वो HR में थी जी, है ना, IT कंपनी थी, लेकिन उसके HR डिपार्टमेंट में जी, और उससे लोग बहुत खुश थे। तो फिर उसको था यार मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, लोग मुझसे बहुत खुश है, ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है। लेकिन ये तो उसका मतलब उसका कंफर्ट, देखो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो हमें कंफर्टेबल रखे। ठीक बात है ना। तो वो उसको कहता था यार तू ठीक है, सब कुछ है, नई जगह जाएगी, नया पंगा लेना, क्यों पंगा लेना। तो मैं उसके लिमिटिंग बिलीफ्स को ठीक किया, हमारी टीम ने उसके साथ इंटरव्यूज फिक्स किए। ओके। और उसके बाद में उसने समझा कि आज अगर मैंने अपना टाइम पास कर दिया तो कल मेरी एज बढ़ेगी, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ जो मैं अब कई बार मैं मिस कर जाता हूँ, पर आज मैं मिस नहीं करूंगा, और मैंने इससे पहले कहीं बताया भी नहीं ये बात। देखो हर पोजीशन का जो है ना एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और मैनेजर कोई भी मैनेजमेंट जो है ना, नहीं दोबारा बोलता हूं, देखो हर पोजीशन का, हर जॉब रोल का एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट डिसाइड करके रखता है, और उतने समय के एक्सपीरियंस के बाद मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगा आप उसी जॉब रोल पर रहें। तो अगर हम अपने सीनियर जॉब रोल पे नहीं जा पाए तो साइलेंटली वी आर किलिंग आवर कैरियर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। भाई जैसे ये अंदर झांकने की जरूरत है। हाँ देखो, आप देखो ना कितने सारे ऐसे सीमेंट प्लांट है जिसमें कि जो प्लांट लॉजिस्टिक हेड की पोजीशन है वो डीजीएम होती है, ठीक है। अब एक डीजीएम बंदा बहुत अच्छा परफॉर्मर है जी, और वो काम कर रहा है एज ए डीजीएम, ठीक है, एज ए प्लांट लॉजिस्टिक हेड। अब उसने 5 साल काम कर लिया,
अब वो ग्रो नहीं करना चाह रहा आगे, ठीक कि है। उसका सिटी चेंज हो जाएगा या उसको ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो मैनेजमेंट उसको कब तक उसको जीएम की, सीनियर जीएम और प्रेसिडेंट की सैलरी कैसे दे देगा डीजीएम होते हुए? एब्सोल्युटली राइट, या एब्सोल्युटली राइट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल। मतलब- बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है कि यू हैव स्टार्टेड काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मिंग स्टिल ऑन दैट पर्टिकुलर सैलरी, तो आप अपनी सैलरी को भी और अपनी पोजीशन को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत सुपर है, हाँ। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको सीनियर पोजीशन मिल जाए और सीनियर पोजीशन का पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए सीनियर ठीक पोजीशन बात है, का। हाँ। लेकिन भैया आपको सीनियर पोजीशन के सुविधाएं, पावर्स और पैसा तब मिलेगा जब आप सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे होंगे। यस, लोअर पोजीशन पर बहुत अच्छा काम करके सीनियर पोजीशन की क्या बात है। सुविधाएं, पैसा, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी नहीं मिलेगी। इंडियन आर्मी में इसी से रिलेटेड एक बड़ी जबरदस्त चीज है, एक ही सिंपल सा कोट है कि एवरी सोल्जर शुड बी लाइक वन, शुड बी विद one rank up thinking. Yes. So when you meet a major, you are actually meeting a lieutenant colonel. When you are meeting a lieutenant colonel, you are actually meeting a colonel. तो जो आप जब से मिलते हो ना, आप उस पोजीशन पे नहीं मिलते हो, आप उससे नेक्स्ट लेवल के बंदे से मिल रहे होते हो। तो ये आपकी बात ने बहुत ही खूबसूरती से जस्टिफाई किया है। दिस इज रियली वंडरफुल, फैंटास्टिक। आप उस पोजीशन के बंदे से नहीं, उस पोजीशन की एनर्जी से मिल रहे होते हाँ, हो। ये आपका वाला लेवल है। हाँ, हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ में दिखता है, आपको डेप्थ में भी दिखता है। एब्सोल्युटली, तो एनर्जी से आप बेसिकली, हाँ, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। और मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब दो एनर्जी अलाइंड होती है। तो मिलिट्री में आपके सीनियर्स ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग थी, मीनिंग एक ही था। देखो, जो आइडेंटिटी इंजीनियरिंग है ना जी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा प्रमोशन होता है ना, वो उसी बेसिस पर होता है जो डीप डाउन जिस पर हम बिलीव करते हैं। ठीक है ना, जो कागज पे लिखा है, रिज्यूम में लिखा है, उस पर नहीं होता। और अगर आपके अंदर सॉलिड सीनियर इंजीनियर की एनर्जी है ना, तो आपके लिए वीपी बनना उतना बहुत मुश्किल होगा उस समय तक, जब तक कि आप खुद जो है वीपी की एनर्जी में नहीं आ जाते। इसमें क्या करते हैं हम कि आपका माइंड जो है ना, आपका जो मैनेजमेंट है ना, माइंड आपकी आइडेंटिटी को माइक्रो बिहेवियर्स में ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, देखो, हमने आपको बताया, जो हम पहले बात कर रहे थे, कि हमारा इंटरव्यू जो हम सेम कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो 12 महीने चलता रहता है। और हमारा इवेल्युएशन जो है वो हमारी हर बोर्ड मीटिंग में होता है। और जब भी हम सीनियर से साल में लगभग 2 बार हर कंपनी मिलवाती है, तो वहां वो हमारे स्किल टेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी टेस्ट कर रहे होते हैं। ओके ओके, ठीक है ना। तो हमें पहले से ही अपने आप को प्रमोशन के लिए, हाई लेवल ऑफ इंक्रीमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल हमारा अप्रेजल लिखा जाना है और आज हम बोले सर आई एम अ वेरी गुड वर्कर। ठीक बात है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारा जो माइंड है ना, हमारी आइडेंटिटी को माइक्रो बिहेवियर्स में प्रेजेंट करता है, और जो सीनियर मैनेजर है, मैनेजमेंट है कंपनी का, जो सीनियर मैनेजमेंट है कंपनी का, वो उसको बहुत आसानी से पकड़ लेता। ठीक है, मतलब वो हम छुपा नहीं सकते। एक्सपीरियंस बेसिकली। यस यस यस। ओके, तो इसके में स्टेप 1 में हम करते क्या है? स्टेप 1 में हम एनएलपी और डीएनए रीइम्प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इम्पोस्टर सिंड्रोम रिमूव करते हैं, विजिबिलिटी का डर जो है वो डिसॉल्व करते हैं। क्योंकि विजिबिलिटी का डर बहुत होता है लोगों में, तो वो डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है। ओके, इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है उसका रिमूव होना बहुत जरूरी है। बचपन की कंडीशनिंग, ज्यादा मत बोलो, स्पॉटलाइट में मत आओ, वो हम रिराइट करते हैं। ओके, जिससे कि आप इजीली 40 से 60 लाख की सीटीसी पर शिफ्ट हो। स्टेप 1 जो है ना, वो है बात करती है आपके आइडेंटिटी इंजीनियरिंग के बारे में, जो मैंने ऊपर पहले बताया। अब इसमें क्या है कि हम, जो हमारी परफॉर्मेंस है ना, वो वैसी नहीं होती जैसे हमारे रिज्यूम में लिखी है। परफॉर्मेंस हमारी वैसी होती है जो हम अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से मानते हैं। अगर हमने ये माना कि हम एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं और हमारा कोई तोड़ ही नहीं है, तो हमें प्रमोशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। करेक्ट। या जिस पोजीशन पर नेक्स्ट हमें जाना है वहां पे नहीं मान रहे। इसमें हम करते क्या है, 2 टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग,
जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएलपी, और दूसरी डीएनए री इम्प्रिंटिंग। ये 2 टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं, और इन 2 टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के हम इम्पोस्टर सिंड्रोम को रिमूव करते हैं, विजिबिलिटी का जो डर होता है ना उसको डिसॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो बचपन के जो हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न पड़े हुए हैं, ज्यादा मत बोलो, स्पॉटलाइट में मत आओ, हमेशा थोड़ा पीछे रहो, उस तरह की जो माइंडसेट है ना उसको रिराइट करते हैं, जिससे कि आप आसानी से 40 से 60 लाख तक का जो सीटीसी है उसमें आप अंदर चले जाए। इस पे काम करने के बाद आपको अपस्केल होने के चांसेस और बेहतर ब्राइटर हो जाएंगे। डेफिनेट। एंड यू आप एक गारंटी की तरह भी बात कर रहे हो। हाँ भाई, ये होगा ही होगा। जब भाई देखो आज की जो मेरी पोजीशन है ना, आज मैं जिसकी पोजीशन पे हूँ अपने पर्टिकुलर माइंडसेट की वजह से हूँ, और कल मैं जिस पोजीशन पर जाने वाला हूँ वो भी अपने माइंडसेट की वजह से जाना ये तो बात सही है। हाँ। जब मैं खुद ही अपने आप को नहीं मानने को तैयार हूँ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का हो सकता हूँ, तो बनूंगा कैसा, बनेंगे कैसे, मेरे एक्शन कैसे उस तरीके के होंगे। भाई आप इसी तरीके से चीज से सोचिए कि जब तक आप जूतों को निकाल के झाड़ के पहनेंगे नहीं, तब तक जूतों की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। क्या बात है। यू हैव टू बियर। फर्स्ट आपको वो जूता पहनने वाला बनना पड़ेगा। सही बात। तभी ग्रेस आएगा। हाँ यस, ये आप देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जूते, मोजे, बेल्ट, घड़ी, नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इनको छोड़ के और इनको पहन के आपकी एनर्जी में कितना बड़ा अंतर आता है। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात, बिकॉज मैं इन सब चीजों में बहुत ध्यान रखता हूँ। तो जब हमें मालूम है कि ये चीजें हमारी, ये सब चीजें हमारी एनर्जी चेंज करती क्या है, बात है, तो बहुत उसको यूज क्यों नहीं करते। ब्यूटीफुल। देखो हम एक चीज आपको और बता देते हैं जी, नोइंग और डूइंग में बहुत बड़ा अंतर है। ओके। जैसे मैं 60 इयर्स का हूँ, उस समय में जो है नोइंग बहुत मुश्किल होती थी। नोइंग के लिए हमें या तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, या हमें किसी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट टीचर के पास जाना पड़ता True. था। लेकिन डूइंग बहुत जाती थी, मास्टर साहब के यहाँ आना जाना है, लाइब्रेरी आना जाना है। अब क्या है, हर यूट्यूब में, हर गूगल पर भरी पड़ी है जानकारी। एक आप क्वेश्चन पूछो वो 100 जवाब देगा। तो नोइंग की आज में कोई कमी नहीं है, जरूरत है डूइंग। नोइंग इज ओनली 30%। आपको रिजल्ट चाहिए तो जस्ट अंडरस्टैंड मी, डूइंग इज 70%। और जब तक आप डूइंग नहीं करेंगे तब तक उस नोइंग का कोई मतलब नहीं। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। सो ऐसे ही एक केस स्टडी आपके पास है ऋतु की, तो उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? नहीं, ऋतु का जो केस है वो डिफरेंट है। ऋतु जो है वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही नाइस स्पीकिंग और बहुत ही कूल, कोजी, काम पर्सनैलिटी थी। लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ गई थी कि मैं तो जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं अब और क्या ही चाहिए मुझे जिंदगी में, सब सही चल रहा है। हाँ, तो लेकिन उसका जो कहीं ना कहीं जो उसका एक्टिव माइंड था, तो वो समझता था कि नहीं प्रमोशन जरूरी है, प्रमोशन होना चाहिए। ओके। तो वो फिर एक उसके वेल विशर के साथ जो हमारा कॉमन फ्रेंड था हमारे पास आई, तो हमने बैठ के उनके ये पैटर्न्स को हम लोगों ने स्टडी किया, उनके लिमिटिंग बिलीव्स को हमने समझा, और फिर हमने उनको बताया कि व्हाई यू शुड गो फॉर प्रमोशन एंड थिंक ऑफ इट। देखो जिंदगी में जो है ना, ग्रो करने के लिए वाई बहुत जरूरी है। अगर वाई नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो ऋतु के केस में भी हमने वाई निकलवाया उनका। उसके डीप अंदर कहीं पड़ा हुआ था कि शी वांट 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स। अच्छा, ये अंदर कहीं कहीं छुपा हुआ था। ओके, है ना। पर वो कह रहे थे यार 2 कमरे का से काम चल रहा है तो क्यों उसके दिमाग लगाना, हो जाएगा अपने आप। तो अपने आप तो भैया कुछ नहीं होता है, सब कुछ करना पड़ता है। फैंटास्टिक। अच्छा, ऋतु के उसमें बता दूं, वो 18 लाख से उसने अपना कैरियर जब वो शुरू में शुरू किया था, और जब उसने रिकॉर्ड सिस्टम अपने अंदर उसने इम्प्लीमेंट किया, अपना एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड उसने अपना रिबिल्ड किया, तो वो लगभग 40-42 लाख के सीटीसी पे वो चली गई। उनकी लैंग्वेज बदल गई, बॉडी लैंग्वेज उनकी शिफ्ट हो गई, वो डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत शार्प हो गई, और उनका जो कम्युनिकेशन था अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये कितने दौरान में हुआ, कितने समय में हुआ? लगभग 3 महीने का समय। विदिन 3 मंथ्स।
ओह माय गॉड। देखो पहले उनके पास कोई वाई नहीं था, अब उनके पास वाई था। तो वाई था तो वाई की एक एनर्जी होती है। उन्होंने विजुलाइज किया कि जब उनका अपना मकान 3 कमरे का होगा तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। okay. और सिर्फ देखो ये सिर्फ मकान कब होगा, जब उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो जब प्रमोशन उनका हो जाएगा तो उनके पास अथॉरिटीज क्या होंगी, है ना। तो अथॉरिटीज को उन्होंने उसको समझा, लोग किस तरह से उनको रेस्पेक्ट करेंगे वो समझा, वो लोगों को चैरिटी कैसे कर पाएंगी उसको समझा। देखो एक प्रमोशन या एक हायर इंक्रीमेंट जो है ना, वो आपके पूरे परिवार पे इम्पैक्ट करता है, पूरे समाज पे इम्पैक्ट करता है। दैट इज नॉट ओनली फॉर मी और ओनली फॉर यू, इट इज फॉर ऑल योर लव्ड वंस। एक्सीलेंट। एक हटके सवाल है मेरा। मान लेते हैं कि मैं 50 लाख रुपए साल का कमाता हूँ या कोई भी एक एक्स अमाउंट कमाता हूँ और मेरी इनकम बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि मैं गाड़ी ले लेता हूँ और एक ड्राइवर भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जो आपने बात बोली है कि उसका इम्पैक्ट उस ड्राइवर की जिंदगी में भी आ गया, कि उसकी सैलरी अब मैं दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपने जो बिल्कुल सही कहा कि बहुत लोगों में बहुत डाइवर्स डायरेक्शंस में आपका इम्पैक्ट जाता है। दैट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। सो अभी हम स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पे जाते हैं कि जो वैल्यू एम्प्लीफिकेशन है, ये तो अपने आप में शब्द ही बड़े पावरफुल लग रहे हैं मुझे। ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है? देखो ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स क्या मानते हैं, मैं अपना काम टाइम पे करके दे देता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, पर काम तो कर ही देता हूँ, मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ और मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू तो मैनेजमेंट को अपने आप ही पता होना चाहिए। तो पता है ही उसको, वो ऐसा मान के चलता है। भैया जो आप काम कर रहे हो, वो काम करना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यू को लोगों को बताएं। अगर आप, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म पीपल दैट व्हाट आर यू डूइंग। इफ यू विल नॉट इन्फॉर्म अबाउट योरसेल्फ, who else will inform, and why you are expecting from others? देखो अगर आपके डिसीजन मेकर्स आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, चाहे आप कितना भी बढ़िया काम कर रहे हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, आप ब्रिलियंट इंजीनियर हो सकते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन टेक्निकल है तो आपको अगला प्रमोशन एज ए स्टैटिक एसेट मान के कंपनी कभी नहीं देगी। अगर आप ब्रिलियंट इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन आपका टेक्निकल लेवल वाला है तो कभी भी आपको स्ट्रेटेजिक परफॉर्मर के तरीके से कंपनी नोटिस नहीं करेगी, और नोटिस नहीं करेगी तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। करेक्ट। तो इसमें सिंपल सा है, तो हम उनको डीएनए रीइम्प्रिंटिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ग्राफोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब टूल्स का जब यूज करते हैं तो वो सब चीजें आपको नया पैकेज देती है, नया प्रेजेंटेशन देती है, और आपको नया कम्युनिकेशन आपके अंदर रिबिल्ड करती है कि ताकि आप एग्जीक्यूटर से आप स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूटर बन जाए। क्या बात है। फ्रॉम सिंपल, फ्रॉम द एग्जीक्यूटर टू द स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूटर। सो आपके इस रिकॉर्ड सिस्टम ने ना बहुत लोगों की जिंदगी को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं, बेहतरीन बनाया। तो वैल्यू एम्प्लीफिकेशन का रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दीजिए। मतलब आपका टेक्निक तो ठीक है, बट लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है? मैं इसमें आपको रियल एग्जांपल देता हूँ मिस्टर समीर का। वो जो है एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी में टेक लीड है, और उनका जो सीटीसी था वो 23 लाख था। अब जब मेरी उनसे फर्स्ट मीटिंग हुई तो मैंने उनसे पूछा, व्हाट डू यू से इन मीटिंग? जो आप, हर एक आदमी की एक टोन होती है, एक लैंग्वेज होती है, कुछ एक सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे कहा, जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां पर आप क्या बोलते हैं? उन्होंने सब कहा कि आई टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, फ्रेमवर्क एंड टूल्स। ठीक है। मैंने कहा भैया क्लासिकल टेक्निकल डंपिंग है ये। मैंने उनसे कहा कि ये जो आपका जवाब है ये क्लासिकल टेक्निकल डंपिंग है। अच्छा, दिस विल नॉट वर्क। अच्छा, हाँ। लीडरशिप, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर में मैनेजमेंट की कोई रुचि नहीं है, उनको आउटकम चाहिए। ठीक बात। और आउटकम में वो 3 चीज आज की डेट में वो कंसिडर करती है। पहला रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा कॉस्ट सेविंग, और तीसरा स्पीड मूवमेंट। जी। ठीक है।
अब हमने उनका पूरा कम्युनिकेशन जो होता ना, जब हमने रिकॉर्ड सिस्टम पर उन्होंने काम किया हमारे साथ, तो उनकी लैंग्वेज बदल गई। ओके। तो उन्होंने खुद ही अपने कम्युनिकेशन को जो पहले मीटिंग्स में करते थे और जो वो अब करने लगे, वो हो गया वी माइग्रेटेड टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये उनका सिंपल हो गया, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ वी माइग्रेटेड टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, नाउ ही इज सेइंग वी रिड्यूस डिप्लॉयमेंट टाइम बाय 60%, enable product team to launch features in the product, and directly this boosted Q3 times revenue. तो रेवेन्यू ग्रोथ और स्पीड इंप्रूवमेंट तीनों इसी स्ट्रक्चर में आ गई। बिल्कुल। और इससे क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा समीर के ऊपर में, उनकी सैलरी विद इन अ ईयर टाइम डबल हो गई। अच्छा, दैट इज। तो ये इतना इम्पैक्टफुल है, मतलब जो आप बता रहे हैं भाई। आप देखिए ना, आपके आसपास जिस इंडस्ट्री में लोगों को 4, 5, 6 साल तक स्टक रहते हैं, वहां पे लोगों को 1 साल में 2 प्रमोशन कैसे मिल रहे हैं? कुछ तो वो डिफरेंट कर रहे हैं ना। करेक्ट है, कुछ तो बात है, कुछ तो कर रहे हैं ना। हाँ। तो कुछ लोग इस रिकॉर्ड सिस्टम को या एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड को नोइंगली करते हैं, और कुछ ऑब्वियस है कुछ के लिए, और कुछ की शायद किस्मत ठीक होगी तो उनका हो जाता होगा। नहीं, उस तरह का माहौल है ना। माहौल देखो, आज हमारे दिमाग में जो भी हमारे बिलीव्स हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो कहां से आए? वो एनवायरनमेंट से आए। ठीक है ना। तो एक आदमी का एनवायरनमेंट अलग है, तो उसकी सेम स्किल्स होने के साथ, सेम सर्टिफिकेट्स होने के साथ भी उसका आउटपुट अलग है और दूसरे का अलग। करेक्ट। मतलब उसी कॉलेज का लगभग सेम मार्क्स लेके आने वाले भी 2 बंदों के करियर में या 2 एम्प्लॉय के करियर में आप डिफरेंस देखिएगा। एक आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है और दूसरा उसी डिपार्टमेंट का मैं जो है वो क्लरिकल में भी नहीं आ पाता। क्यों भाई? जबकि ग्रेजुएशन में नंबर भी बराबर है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि भैया तू आईएएस नहीं बन सकता। सो रिकॉर्ड सिस्टम इज सो पावरफुल कि थोड़ा सा भी आपकी गाइडेंस में आने के बाद रिजल्ट्स बदल जाएंगे। देखो, ये मेरी गाइडेंस में आना नहीं है, रिजल्ट बदल जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये मेरी गाइडेंस में आना नहीं है, ये आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। क्या बात है। ओके। और जब आप ये नहीं हो पाएगा, आज आपका वर्जन ये है और कल से आपका वर्जन होता है, ये तो मैं करके ही मानूंगा। आज आप कह रहे हैं कि पैसा मुश्किल से आता है, कल आप कहेंगे मनी कम्स टू मी इंक्रीजिंग क्वांटिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, तो फिर डिफरेंट है भाई। तो जब पूरा सॉफ्टवेयर ही रिवायर हो गया, चेंज हो गया, हार्ड डिस्क की बदल गई, सही बात, तो परफॉर्मेंस बदल गई, और जब परफॉर्मेंस बदल गई तो रिजल्ट बदल गए, और रिजल्ट बदल गए तो आपका किन बदल गया, तो जिंदगी बदल गई। क्या बात, ब्यूटीफुल। अभी समीर को 24 मतलब ये समझ लो कि 54 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2x हो गई उनकी सैलरी। मतलब सेम स्किल है लेकिन बेटर वैल्यू कम्युनिकेशन। सो डॉक्टर साहब, इतनी जबरदस्त इंसाइटफुल डिस्कशन के बाद इफ आई रिक्वेस्ट यू कि रीकोड जो आपका इतना कमाल का आपने सिस्टम बनाया, जो आईटी प्रोफेशनल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम लेस सीटीए टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सीटीए, 15 लाख वाले सीधे 40 पे पहुंच रहे हैं, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप या छोटे से सिस्टमेटिक तरीके से हमारी ऑडियंस को विद सम एग्जांपल अगर बताएं। देखो, अभी एक रिसेंट केस है नेहा का। ओके। वो जो है कुछ 7 साल से एक पोजीशन पे स्टक है और 28 लाख रुपए कमा रही है। ओके। और वहां से उसने जंप किया है 60 लाख प्लस में। तो उस केस में उनके पास टाइम भी नहीं था, वो उसको जल्दी करना चाह रही थी। हाँ, लेकिन उन्होंने टाइम भी बहुत दिया, अपने ऊपर मेहनत उन्होंने काफी की। और हुआ क्या, उनकी इशू क्या था? उनका इशू था ओवरथिंकिंग, डाउट एंड अनसर्टेनिटी और वीक नेगोशिएशन। हमने एनएलपी के द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा उनकी आइडेंटिटी और उनकी फ्रेमिंग दोनों रिवाइव किए। ओके। तो देखो, फिर वही बात है, नोइंग की कोई कमी नहीं। करेक्ट। सैकड़ों यूट्यूब पर, गूगल पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे। जरूरत है डूइंग, यू हैव टू टेक एक्शन। एंड नंबर 2, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक चाहिए अकाउंटेबिलिटी मैनेजर, जो इसके पास डेली एक शेड्यूल हो, जो इंडस्ट्री से हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपको हैंड होल्डिंग करे
और जो डेली का काम है वो डेली का काम आपसे करवा ले। तो अकाउंटेबल एक तो नॉलेजेबल भी हो वो आदमी, करेक्ट, उसके पास में एक फ्रेमवर्क हो जिसको कि आप कर पाए, वो आपके इंडस्ट्री को समझने वाला हो, और तीसरा वो आपको कंप्लीट आपका अकाउंटेबिलिटी मैनेजर बन के काम करे। क्योंकि आज के समय में अगर मेरे पास अकाउंटेबिलिटी मैनेजर नहीं है, मैं कितने भी कैरियर कोर्स, मैं कितने भी कैरियर कोर्सेज ले लूं, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर कोई कर लेता है तो वो हैट्स ऑफ। एक्सीलेंट। सो अंत में मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अपने सारे आईटी प्रोफेशनल्स जो अभी तक हमें सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने डोमेन में, अपनी इंडस्ट्री में, अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य होना है तो आपको एक चाणक्य की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर बिपिन, मैं आपसे एज ए चाणक्य रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में कुछ शब्द हमारे ऑल द आईटी प्रोफेशनल्स जो आपको सुन रहे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे लिए क्या है, तो उनके लिए कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे। तो लगभग 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा आईटी प्रोफेशनल है वो खुद ट्रायल एंड एरर के साथ खुद करना चाहता है, या वो एक प्रूवन सिस्टम के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ रिकॉर्ड प्रीमियम प्रोग्राम में। ये वही प्रोग्राम है जिसके के बारे में मैं इतने दिनों से ये वही प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, और हजारों प्रोफेशनल्स ने इस रिकॉर्ड एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन कोड का फायदा उठाया है। देखो, ये जो है प्रोग्राम 15 से 25 लाख से जंप करके 40 से 60 लाख तक आपको ले जाने वाला है। ये प्रमोशंस आपके फास्ट ट्रैक होने वाले हैं। मैनेजर्स ने उनको लीडरशिप ट्रैक पर शिफ्ट किया है। विजिबिलिटी 5 to 10x इसमें बढ़ गई है आपकी। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। और सबसे बड़ा, कैरियर का डायरेक्शन क्लियर है और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो स्टैग्नेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, 40 लाख से 60 लाख एलपीए ट्रैक पर आना चाहते हैं, हाई परफॉर्मेंस आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हैं, रेडी है अपने पैटर्न्स को रिवायर करने के लिए, और गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन पर विश्वास करते हैं और उसको प्रीफर करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रैंडम स्टडी। इफ दिस इज फॉर यू, दिस इज द मोमेंट वेयर यू शुड टेक डिसीजन। सो डॉक्टर साहब, जब हमारे आईटी प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम को, रीकोड को ज्वाइन करेंगे, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ स्टेप्स भी होंगे कि 1 2 3 4 आप जाएंगे तो आप ग्रो करेंगे, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्लीज जानकारी दीजिए। देखिए, जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड, प्रेडिक्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मिलती है। अब इसके 5 स्टेप हैं, तो इसको जब आप अडॉप्ट करती है मेटास्टर सिस्टम को और ऑनबोर्ड होती है हमारे साथ, तो जो 5 स्टेप में हम आपकी जर्नी कंप्लीट करवाते हैं। इसमें स्टेप 1 है डीप ड्राइव डायग्नोसिस कॉल, है ना। इसमें आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स, ब्लॉक्स, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ओके। फिर नंबर 2 में हम चले जाते हैं आपकी आइडेंटिटी, परफॉर्मेंस, इमोशंस और विजिबिलिटी का रिवायरिंग मैप है, उसको हम लोग आपको दे देते हैं। नंबर 3 में वीकली ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस होती है, जहां पर कि आप शिफ्ट होते हैं कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ओनरशिप, लीडरशिप एंड परसेप्शन पर। और फिर स्टेप नंबर 4 में ऑन डिमांड सपोर्ट 24/7 जब आपको जरूरत पड़ती है, तो मैं खुद या मेरा कोई टीम मेंबर जिसको कि आप फोन करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है, जो कि इमीडिएटली आपको जिस एनर्जी में है उस एनर्जी से निकालकर आपको डिजायर एनर्जी में आपको ले जाए। और नंबर 5 कैरियर एक्सप्लोरेशन पाथ, इसमें हम आपको रोड मैप डिजाइन करते हैं, जिससे कि आप अपने जो 25 लाख के सीटीसी पे है उससे कि 60 लाख के सीटीसी पर कैसे पहुंचे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। जी, कुछ कहना आपने? अब मैं आपसे लास्ट में एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, ये मेरी बात मैं अपने ऑडियंस से कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, आप कितने साल तक वेट करते रहेंगे कि आपको रियल करियर ब्रेक थ्रू मिल जाए? अगर आपका जवाब है नॉट एनीमोर,
this is the moment to take decision. That this is your sign. ग्रोथ कभी ऑटोमेटिकली नहीं आती है. ग्रोथ आती है अपने पैटर्न्स को रिकॉर्ड करने से. जी. लाइफ टाइम कुछ डिसीजंस होती हैं जो लेने पड़ती हैं. अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने कैरियर में खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप एक डिसीजन लें और आप नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें और ज्वाइन करें मेरी 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल, जिससे कि आपके बारे में मैं समझ सकूं और आपके लिए क्या कैरियर पाथ बेटर है वो मैं आपको. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. आज हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो हमारे पुराने कोड हैं, इनकी वजह से हम कहीं अटक गए हैं. मेंटल बैरियर्स, लिमिटिंग बिलीफ कह लीजिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए कि मुझे तो ठीक लगता नहीं है, मैं कैसे बोलूं, लोग मुझे क्या कहेंगे. इन सब की वजह से जो लोग स्टक हैं, स्पेशली ऑल दी आईटी प्रोफेशनल्स, उनके लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा. एंड मैं आपको बार बार शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपकी इस अप्रोच से आने वाले टाइम में जितने भी हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जिंदगी को और अच्छे से अपस्केल करेंगे, अपग्रेड करेंगे और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. तभी जो आपने शुरू में कहा था कि हमारा देश और खूबसूरत होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लिक को, लिंक को जो आपको दिया गया है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी जो आपको लिंक दिया गया है उसको अभी क्लिक करें, अपना 101 सेशन डॉक्टर साहब के साथ अभी बुक करें एंड अपनी जिंदगी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए. क्योंकि अगर अभी नहीं तो आप जानते ही हैं आपके दिमाग में सेंटेंस आ गया होगा जो मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. I too enjoyed this session. Fantastic. Soon we will meet again with a new podcast for growth and development on again IT professionals. Fantastic. That will be insightful.